एवरीवन, मैं दर्शना सांगवान और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेरे कुछ स्टूडेंट्स के साथ, कुछ गर्ल्स हैं, कुछ बॉयज़ हैं, उनके साथ आज एक ऐसे बर्निंग टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं, व्हाट्स हैपनिंग इन इंडिया। आज हमारे इस भारत में जो हो रहा है गर्ल्स के साथ, वुमेन के साथ जो भी नाइंसाफ़ी हो रही है, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। और ना सिर्फ मैं अपने व्यूज़ आप लोगों के सामने रखने वाली हूँ इस चीज़ को लेकर, बिकॉज जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन है दैट इज एट अ इंक्रीजिंग एट अ रैपिड स्पीड कॉन्टिन्यूसली। एंड इसीलिए मैंने कुछ बॉयज़ को और कुछ गर्ल्स को अपने साथ लिया, अपने कुछ स्टूडेंट्स को। दे आर द टीनेजर्स एंड दे आर गोइंग टू शेयर देयर व्यूज, what they are thinking and what should be the solution, what should be the remedies to stop such kind of crime against the women। क्योंकि हम ये कहते हैं कि हमारा जो भारत है ये वो भारत है जहाँ पर जब कलयुग ज़्यादा बढ़ गया था या लोगों के पाप ज़्यादा बढ़ गए थे, तो यहाँ पर श्री कृष्ण जी और भगवान श्री रामचंद्र जी ने अवतार लिया था। इनकारनेशन ऑफ द गॉड केम टू द अर्थ, इन्हीं चीज़ों का एंड करने के लिए, विनाश करने के लिए। तो आज ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्या हमारा जो भारत है आज उसमें इतनी गंदगी फैल चुकी है कि हम खुद ही हमारे देश की बेटियों के लिए या हमारे देश की विमेन के लिए सोचना भी नहीं चाह रहे कि इसका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए। तो एंड में मैं अपने विचार जरूर रखूंगी। पहले मैं अपने स्टूडेंट्स से इस चीज़ को डिस्कस करना चाहती हूँ कि व्हाट दे आर थिंकिंग एंड व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट द कॉजेज ऑफ दिस क्राइम विच इज इंक्रीजिंग अगेंस्ट द women। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गुरतेज इज देयर विद मी एंड ही इज गोइंग टू शेयर हिज व्यूज। हेलो गुरतेज, शेयर योर व्यूज बेटा। It will not be wrong to say that while a murderer destroys the physical framework of the victim, but rape degrades and defiles the soul of a helpless woman. Sexual assault on women is a common phenomenon in our country. Under sexual assault comes molestation, eve teasing, child sex abuse, marital rape, and all the domestic violent crime. Rape is the most heinous crime performed by a man against a woman. Rape outrages a woman's modesty. After a rape incident, a woman may live a pathetic life which includes fear, depression, guilt complex, suicidal action, and social stigma. In recent years, rape cases have been increasing. According to the data, in our country, 2 women are being raped in every 1 hour, if further believed to be data. Every 9 girls of age 1 to 10 are being raped in our country in every 2 hours. It clearly appears that rapists are not scared of laws, and some of the cases also being reported where minors and elderly women are being raped. And the recent incident which was shook the nation, that on 9 August 2024, Momita Devnath, a trainee doctor at RJ Kar Medical College in West Bengal, Kolkata, India, was raped and murdered in a college building, and her body was found in a pathetic condition. And the cruelty which was shown towards the girl by the rapist filled every Indian with wrath, and that thousands of people poured into the streets to demand justice for her. And not only this, a number of girls and women are being raped every day, every moment in our country. A girl of just 12 years from Yamunanagar has currently been raped by a 60-year-old man. Most cause of increasing rape cases is lack of public safety. Women are not safe outside their homes, and not only outside, they are not safe inside their homes. Another very important reason is sluggish court system of India and few conviction. India court system is painfully slow, and the case rape case that reported conviction rate is not more than 26%. So Twinkle beta, as the crime is increasing regularly, daily, daily one or two girls are raped by the rapist, and many a time the rapist they are not getting the punishment what they should get, जो उनको मिलनी चाहिए वो उनको नहीं मिल रही है। तो what do you think, what can be the solution, what are the remedies to get rid of this problem, to eradicate this problem from our society? Do you think is there any solution to this problem?
The first remedy is to strengthening the laws dealing with sexual assaults. And that penalty should be imposed on a rape accused. And some NGO should start rape crisis center where victim can approach by calling a toll-free number. And women's squad should be found in every district. These are the remedies that are told by Twinkle. Although they are the teenager, the children who have shared their views today, they are the children, they are the teenagers. But according to me, I must say at the end कि ये जो गर्ल्स के, वेमेन के, ये जो डेली बेसिस पर जो ये रेप हो रहे हैं या उनके साथ जो भी डोमेस्टिक वायलेंस है या जो कुछ भी हो रहा है, देखिए कहीं ना कहीं हमारी जो सोसाइटी है, ऑल्दो वी आर सेइंग दैट वी आर मूविंग टुवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन एंड वी आर फॉलोइंग द वेस्टर्नाइजेशन, तो आपको नहीं लगता कि हमारी सोसाइटी में जो वुमेन है, स्टिल हमारी जो सोसाइटी है इट इज़ अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। अगर हमारी सोसाइटी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी ना होती तो ऐसे ऐसे रेपिस्ट जिन्होंने इतने बड़े बड़े क्राइम कर दिए, जिन्होंने किसी की लाइफ को ही खत्म कर दिया, सोल को मारने की मैं बात नहीं कर रही हूँ, आफ्टर रेपिंग द गर्ल दे मर्डर्ड दैट गर्ल, दे किल्ड दैट गर्ल, तो मेरे अकॉर्डिंग मैं नहीं मानती कि ऐसे लोगों के अगेंस्ट कोई भी ऐसी पुलिस कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे अगेंस्ट ऐसे जो रेपिस्ट हैं, ऐसे जो क्रिमिनल्स हैं, उन लोगों को जिसके साथ क्राइम हुआ है, जिसके साथ वो हिन्नस क्राइम उसने किया है, उसकी फैमिली के हवाले कर देना चाहिए। मैं नहीं मानती कि ये जस्टिस है अगर आप ये कह रहे हो कि उनके अगेंस्ट केस चलेगा या उनकी पेशी लगेगी, तारीख लगेगी या उनको रिमांड पे लिया जाएगा। हु इज टेकिंग द एविडेंस ऑफ दिस थिंग? किसके पास इस चीज का एविडेंस है, प्रूफ है कि उनको रिमांड पे लिया जा रहा है या उनके साथ उतना ही गलत हो रहा है जितना गलत उन्होंने उस गर्ल के साथ या उस वुमेन के साथ किया होगा, जितना क्या उसके साथ उतना गलत हो सकता है? नहीं। अगर उस रेपिस्ट को, जितने भी रेपिस्ट हैं, डेली रेगुलर रेप हो रहे हैं, तो जितने भी रेपिस्ट हैं, जितने भी ऐसे ऐसे क्रिमिनल्स हैं, मैं नहीं कहती कि उन्हें पुलिस के हवाले करिए, उनको उसकी फैमिली के हवाले करिए जिसके साथ वो क्राइम हुआ है, सो दैट उसकी जान उसी तरीके से निकलनी चाहिए जिस तरीके से उन्होंने उस लेडी की, उस गर्ल की जान निकाली होगी। आप सोच के देखिए कि उसको कैसे मारा होगा उन्होंने। तो मेरे अकॉर्डिंग तो यही है। देखना, मैं खुद एक वुमेन हूँ, मेरा भी यही मानना है कि ऐसे रेपिस्ट को, ऐसे क्रिमिनल को जेल में रखना, रिमांड पर रखना, दिस इज टोटली रॉन्ग। दिस इज नॉट अ जस्टिस टू द गर्ल who has become the victim in their hands। ये उसके लिए जस्टिस नहीं है। जस्टिस ये है कि उस पर्सन को आप उसकी फैमिली के हवाले करिए या कुछ लेडीज के हवाले करिए और फिर उनको कहिए कि इसे अपने तरीके से पनिशमेंट दीजिए। पनिशमेंट ऐसी हो ऑन रोड कि लोग देखें और लोगों की रूह कांप जाए, आगे से इस काम के बारे में सोचें भी ना कि नहीं उसके साथ ऐसा हुआ था। जब उसकी बॉडी के एक एक पार्ट को काटा जाए ना, नोट फ्रॉम द हेड, सिर की तरफ से नहीं, उसको पैरों की तरफ से काटना शुरू करें, और जब उसकी बॉडी के एक एक पार्ट को काटा जाएगा ना, तब उसको पता चलेगा कि क्राइम क्या होता है, रेप क्या होता है। तो these are the views of the teenager and these are my views what should be done to a criminal. Thank you so much.